اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے بڑی افسوسناک خبر، اس وقت تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ مہاراشٹر اسٹیٹ کے امیر جماعت، صوبہ مہاراشٹر کے دعوت و تبلیغ کے امیر جماعت جناب حافظ منظور احمد صاحب کا آج صبح انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور اللہ اہل خانہ اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ یہ خبر ابھی وائرل ہو رہی ہے۔ صبح تقریباً یوں سمجھیے کہ 10:30 بجے سے ابھی نماز جنازہ کب ہوگی اور تدفین کہاں ہوگی، اس کی پوری تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے۔ بس ابھی اتنی خبر ہے کہ صوبہ مہاراشٹر کے دعوت و تبلیغ کے امیر جماعت حافظ منظور احمد صاحب اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، پیپر لیک۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 23 لاکھ بھارتی بچوں کی زندگی سے، اسٹوڈنٹس، چھاتر چھاتراؤں کی زندگی سے کھیل لیا گیا، اور تقریباً ان 10 سالوں میں، یعنی نریندر مودی جب سے بیٹھے ہیں، جی ہاں، وہ 56 انچ کا سینہ کسی بھی چیز کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے۔ صرف الیکشن کی حفاظت انہوں نے بنگال میں جیسے کی، ویسے وہ اپنی کرسی کی حفاظت کر پا رہے ہیں، اور 99 پیپر ان 10 سالوں میں لیک ہوئے ہیں۔ اب پیپر لیک کو خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک وزیر، 3 بحران، بار بار پیپر کیوں لیک ہوتے ہیں، بحران پر بحران، پھر بھی استعفیٰ کیوں نہیں؟ یعنی اتنے بے شرم، اتنے بغیرت کہ لاکھوں بچوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اور انہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہے، یہ استعفیٰ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ نیٹ پیپر لیک تنازع پر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے جواب مانگا ہے۔ خیر، نریندر مودی جواب دینے کے لیے ملک میں رہیں گے تو ضرور راہل گاندھی کو جواب دیں گے، لیکن جب بھی کوئی بڑا حادثہ ملک میں ہوتا ہے اور اس کا جواب دینے کی ہو سکتا ہے باری آ جاتی ہے، تو اس وقت نریندر مودی باہر نکل جاتے ہیں۔ ابھی فی الحال وہ پورے بھارت واسیوں کو گھر میں رہنے کا مشورہ دے کر 5 ملکوں کے دورے پر گھومنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ حالانکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ پیپر لیک معاملے کو لے کر کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، پونے سے بھی گرفتاری عمل میں آئی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے، اس لیے اس کا معاملہ ابھی یہیں پر تھما ہوا ہے، ورنہ اندھ وقت اس کا مسئلہ اور یہ معاملے کو پاکستان ISI سے جوڑ دیے ہوتے، اور ہماری رکھیل میڈیا اب تک کے بھونکنے کا کردار ادا کر رہی ہوتی۔ ریاست اتر پردیش کی راجدھانی، نوابوں کا شہر لکھنؤ، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش میں آپ جانتے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہے، وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں جو لکھنؤ سول کورٹ ہے، اس میں وکلا کے غیر قانونی چیمبروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ وکلا کے غیر قانونی چیمبرز پر بلڈوزر چل گیا، پورا علاقہ چھاونی میں بدل گیا۔ رجسٹری آفس سے سڑک اور نالے پر بنی تقریباً 240 اسٹرکچر کا انہدام عمل میں آیا ہے۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے قیصر باغ میں واقع ضلع اور سول کورٹ احاطے میں گزشتہ کل یعنی اتوار کی صبح میونسپل کارپوریشن نے ایک بڑی بلڈوزر کارروائی کو انجام دیا۔
भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कोर्ट के अहाते से लेकर रजिस्ट्री ऑफिस तक सड़क और नाले पर बने करीब 240 गैर कानूनी वकला के चैम्बरों और उनकी दुकानों को मुनहदिम कर दिया गया। ये पूरी कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की जानिब से अनुराधा सिंह की अर्जी पर दी गई सख्त हिदायत के बाद की गई है। बताया जा रहा है कि इन गैर कानूनी तामीरात की वजह से कोर्ट के आसपास का रास्ता पूरी तरह से बंद हो रहा था। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मगरबी बंगाल के वजीर आला शुवेंदु अधिकारी, अभी जो नए वजीर आला बने हैं, जिनकी खूब मजाक उड़ाया था नरेंद्र मोदी ने जब वो 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए बिल्कुल खुले आम पकड़े गए थे स्टिंग ऑपरेशन में, तो उस वक्त मोदी जी ने ऐसा कर करके उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन कहते हैं ना कि आप करोड़ों का करप्शन कर लो, आप रेप कर लो, कुछ भी कर लो, वॉशिंग मशीन यानी बीजेपी में आप आ जाओ, फिर आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, आपके सारे पाप धुल सकते हैं। तो वही शुवेंदु अधिकारी ने भी किया कि पहले वो दूसरी पार्टी में थे, जैसे ही पकड़े गए रिश्वत लेते हुए तो फिर उन्होंने फैसला किया भारतीय जनता पार्टी में आने का। भारतीय जनता पार्टी में आ गए, अब नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। खैर, उन्होंने बंगाल में जो इलेक्शन के बाद में जो फसादात फूटे हैं उनको लेकर शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि नुकसानात के लिए जिम्मेदार फसादियों को ठहराया जाएगा, यानी नुकसानात के लिए फसादियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और अभिषेक बनर्जी की जायदादों की भी छानबीन की जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि अब अपोजिशन पार्टियों के तमाम लीडरों के पीछे बीजेपी पड़ जाएगी और उनको भी दबाने कुचलने और उनको अपनी पार्टी में बुलाने के लिए छानबीन शुरू कर देगी, ताकि वो जल्द ही शुवेंदु अधिकारी की तरह वो भी गोदी में आ जाए। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल यानी 17 मई को गुज़िश्ता कल ज़िलहज्जा का चांद नजर नहीं आया, इसलिए तमाम हिलाल कमेटियों ने मुंबई से लेकर कश्मीर तक तमाम हिलाल कमेटियों ने ऐलान कर दिया है कि ईद उल अज़हा अब 28 मई को होगी। बस दुआएं कीजिए कि गौरक्षक रोड्स पर आ चुके हैं, साल भर वो जागते नहीं हैं। बस मुसलमानों का ईद उल अज़हा का त्यौहार खराब हो जाए, खुशियां खराब हो जाए तो इसीलिए वो रोड पर आ जाते हैं, वरना साल भर उनको गाय अम्मा याद नहीं आती है। जी हाँ, अभी आपने देखा होगा कि हैदराबाद में उन्होंने प्लाईवुड से भरे हुए ट्रक को तोड़ फोड़ किया, पूरे प्लाईवुड का सत्यानाश कर दिया, ट्रक का सत्यानाश कर दिया। जी हाँ, काय के शक में वो सारे गौरक्षक थे, बजरंग दल के गुंडे थे जी, तो उन्होंने पूरा ट्रक बर्बाद कर दिया, प्लाईवुड का लाखों का माल बर्बाद कर दिया, सिर्फ ट्रक में गाय बंधी हुई है इस शक को लेकर। तो अभी बिल्कुल जैसे कीड़े मकोड़े बरसाती मेंढक बाहर आते हैं वो बाहर आ जाएंगे, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि कम से कम इन पर लगाम लगाए, कानूनी कार्रवाई ज़रूर, अगर कोई गाय और बछड़ों को ले जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई आप ज़रूर करें, लेकिन अगर पुलिस कम पड़ गई होगी तो पुलिस ऐलान करे, पेपरों में ऐड निकाले कि तमाम बजरंग दल और गौरक्षकों से हम अपील करते हैं कि आप नौकरियां ज्वाइन कर ले, हमारे पुलिस वाले गौ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये अगर कानूनी तौर पर रोड पर आ जाएंगे तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कानूनी तौर पर नहीं आ रहे हैं तो फिर इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का ट्रक, किसी की गाड़ी तोड़ना और फिर ड्राइवर और लोगों को मारना ये कानूनन जुर्म है। मगर क्या करे, पुलिस भी इनसे इसलिए डरती है क्योंकि इनके अब्बा की हुकूमत है, पुलिस वाले भी बेचारे डर जाते हैं, पुलिस वालों की वर्दी भी कुछ नहीं कर पाती है। तो बस दुआ करें कि ईद उल अज़हा का त्यौहार अमन अमान के साथ पूरे मुल्क में हो जाए। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मैं पेपर लीक की खबर आते ही उसी दिन से मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ ना कुछ मसले का हल किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट बड़ी बदमाश है। जिसका मुझे डर था अब वो खबरें आना शुरू हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में
4 तलबा ने 4 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक से पैदा हालात पर शदीद फिक्र का इजहार किया। मोदी हुकूमत और एनटीए की नाकामी से नीट का पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स जहनी तनाव, दबाव और प्रेशर का शिकार हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत के बदउन्मान सिस्टम, करप्ट सिस्टम की वजह से कुछ तलबा ने अपनी जान दे दी, जो मोदी हुकूमत के एजुकेशन सिस्टम पर बदनुमा दाग है। ये बयान कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर दिया है। आइए नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ अब सुप्रीम कोर्ट में 33 के बजाय 38 जज होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़कर 33 से अब 38 हो गई। केंद्र सरकार ने, मरकजी हुकूमत ने मुल्क के अदालती निज़ाम को मजबूत करने की सिमत में एक बड़ा फैसला किया है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जजों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इजाफा करने जा रही है। बस हुकूमत कुछ ना करे, जजों पर प्रेशर, जजों पर दबाव और कोर्ट को खरीदना और विधायकों को खरीदना बंद कर दे, बिल्कुल सारे मसले आसानी के साथ, इंसाफ के साथ हल होंगे। तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री मरकजी वजीर संजय कुमार के बेटे भगीरथ बंडी संजय के बेटे को पॉक्सो मामले में बड़ा झटका लगा है। 14 दिन की अदालती हिरासत में उन्हें भेज दिया गया जेल। तेलंगाना सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मरकजी वजीर संजय कुमार के बेटे भगीरथ को हफ्ते की रात पॉक्सो केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कल देर रात तिब्बी मुआयने के बाद मुलजिम भगीरथ को तेलंगाना के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अदालत ने पॉक्सो मामले में भगीरथ को 29 मई तक यानी 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया है। मगरिबी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस यानी दीदी ममता दीदी, इनके दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा। अब पुलिस के छापे शुरू हो जाएंगे ताकि जो बच्चे कुछ ममता दीदी के पार्टी में लोग हैं वो भी इधर आ जाएं, गोद में बैठ जाए, बीजेपी में आ जाए। ये आसान तरीका होता है। तो सरकारी मुलाजमीन की सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक 100 से ज़्यादा आधार कार्ड और दस्तावेजात मिलने का दावा पुलिस ने किया है। मगरबी बंगाल से ये अहम खबर सामने आई है कि टीएमसी के दफ्तर से सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक 100 से ज़्यादा आधार कार्ड और दस्तावेजात बरामद हुए हैं। आइए नाज़रीन, रियासत राजस्थान के कोटा से हमारे भाई आरिफ कुरैशी, जो मेरे साड़ू भी है, उन्होंने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस में आग लग गई। राजधानी एक्सप्रेस में आग लग गई। सो रहे मुसाफिरों में कोहराम मच गया। कोटा रेलवे डिवीजन में ट्रेनों की रफ्तार थम गई। कोटा रेलवे डिवीजन में उस वक्त कोहराम मच गया जब सुबह त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में जबरदस्त आग लग गई। यह हादसा विक्रमगढ़ और लोनेर के बीच स्टेशनों के दरमियान पेश आया। आग इतनी शदीद थी कि देखते ही देखते उसने ट्रेन के थर्ड एसी और एसएलआर कोच को अपनी लपेट में ले लिया। खैर, इस हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। डीआरएम के साथ रेलवे के दीगर अफसरान और पुलिस की बड़ी नफरी मौके पर पहुंच गई। आग लगने वाले कोच में मौजूद मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी मिली और उनके सामान को दूसरे कोच में मुंतकिल किया गया। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट
چہرے کی جھائیاں داغ دھبے کالے پن سے ہیں پریشان تو پائیں صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج مردانہ طاقت لیکوریا شوگر جوڑوں کا درد بواسیر خجلی بالوں کا جھڑنا وزن کم کرنا وزن بڑھانا تل مس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی دیش و ودیش سے کہیں سے بھی ہو دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں